Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं एस जे शंकर जी को मतलब कि बांग्लादेशी जो हैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ऑन लोन। तो चलते हैं वीडियो देख लेते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन किया गया है और एस जे शंकर जी ने किस तरह से आंसर किया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो जाहिर सी बात है ज़बरदस्त होगी क्योंकि एस जे शंकर जो हैं उन रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी और जो है वो जब भी कुछ बात करते हैं तो लॉजिकली करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे एस जे शंकर जी से रिगार्डिंगली। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऑल्सो मेरे व्लॉग अपलोड हो चुका है ऑन साइमा पिर्ज़ादा व्लॉग चैनल पर, तो ज़रूर वॉच करें, आपको अच्छा लगेगा। उसका लिंक आपको ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। So let's start the video. I have a simple question. This is Abdul Moment from Foreign Minister of Bangladesh. And I'm so pleased to see the great friends around here. I have a hypothetical question. The question is, in many countries in the, the ocean, in this Indian Pacific, they're becoming, this economic upliftment. Country like Bangladesh, for example, we are doing pretty well in terms of economic development. Since we are doing pretty well, as a result, the aspirations of our common people has gone up, shoot up. They want more facilities, more opportunities for better life, and more infrastructure facilities in the country. But we don't have money, neither we have technology. So in that case, we have a difficulty. We need to develop to face this public demand, the challenge. But at the same time, this help from many countries has been declining. Thanks to, of course, Japan, they are one of the best friends who have been investing in our infrastructure. And also thanks to India, they have been giving line of credit to us. But alternatively, China comes forward with a basket of money and aggressive proposals, affordable proposals. And then you have a problem, what to do. If I understood the question right, essentially what you're asking is, there are competitive offers for development projects, why should countries not take advantage of it? I mean, if I could rephrase it in a way. It's international relations is competitive. Every country will look for opportunities and see what it can do. But while doing so, it's in their own interest to be prudent about what they're getting into, to do the due diligence. We have seen now countries, including in our region, being saddled with large debts. We have seen projects which are commercially unsustainable, airports where an aircraft doesn't come, harbors where a ship doesn't come. So I think people would be justified in asking themselves, what am I getting into? It's obviously in the interest of the country concerned, but it's also in the interest of the international community, because unsustainable projects don't end there. They then often the next is debt becomes equity and that becomes something else. So there are real concerns out there. So I think it's very important all of us make informed decisions, but of course very competitive. ये हमारा आज का वीडियो है जो कि एस जे शंकर जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको आंसर किया है। और जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं उन लोग को भी मैं ये कहूँगी कि देखो वो एक बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने बात की है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि वो क्वेश्चंस उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीके से पूछे हैं और इस बात पर तो उनकी रिस्पेक्ट बनती है। एंड ऑल्सो उनका बहुत ही पोलाइटली क्वेश्चन किया गया था और वो क्वेश्चन का आंसर एस जे शंकर जी ने बहुत ही अच्छी एग्जांपल देते हुए कहा कि भाई ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहां पर आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा।
इन रिटर्न आपको कुछ मिलना ही नहीं है। तो ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करके क्या फ़ायदा, या फिर ऐसी जगह से आप लोन ले लो और फिर आप उसको बाद में पे ना कर सको, तो आपको क्या फ़ायदा कि आप जो है आज उनसे लोन ले रहे हो आज की सहूलत के लिए, लेकिन कल को आपको उसको रिटर्न करने में मसला हो, दिक्कत हो, तो वो वहाँ उस कंट्री के लोग जो है वो आपकी कंट्री में आकर बैठ जाएं और वो आपको मतलब परेशान पूरी दुनिया में इसकी वजह से हलचल मच जाए। तो इससे क्या फ़ायदा ऐसे लोन से? तो आप उतना ही लो जितना आप मैनेज कर सकते हो। और ये बात सच है कि कहते हैं भाई जितनी चादर है उतनी ही आपको पैर फैलाने चाहिए। तो वही हिसाब है कि आप जितना आपके पास है आप उसी को उस लिहाज से मैनेज करो, बजाय इसके कि आप बोलो कि नहीं ये कम है ज़्यादा, इस तरह से नहीं होता। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था बहुत ज़्यादा, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और साथ में शायद ये भी इशारा दिया गया है कि आप चाहे चाइना के साथ रहो या फिर इंडिया और जापान जैसी कंट्री के साथ जो है वो करो बिजनेस, तो आपके हाथ में, लेकिन आप देख लो कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। तो मुझे जहाँ तक इशारा लग रहा है तो वो यही लगता है कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि चाइना जैसी कंट्री जहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा ना हो, उससे बेहतर ये है कि आज जो है वो इंडिया और जापान के साथ जुड़ जाओ और उससे फ़ायदा उठाओ, बिकॉज उसी से ही आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत ही क्विकली आंसर किया, शॉर्ट वर्ड्स में किया, और बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने आंसर किया है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त। और दूसरी बात, सब सुन रहे थे खामोशी से, उनके आंसर सुनने के लिए बैठे हुए थे इंतज़ार में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। सो गाइस, आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था। एंड एस जयशंकर जी के बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि उनकी मतलब कि इस तरह की उनके बहुत स्टेटमेंट्स ऐसे हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट्स होते हैं, जो सुनते ही लगता है कि हाँ कुछ तो सुनने को मिला है। तो गाइज, अच्छा लगा, आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीडियो था, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। एंड वैसे भी बांग्लादेश काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो उसके पीछे काफ़ी हद तक इंडिया का भी हाथ है, क्योंकि इंडिया ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। और इंडिया के साथ साथ वो जो है जो अभी कपड़ों के हिसाब से बहुत ज़्यादा फेमस है बांग्लादेश। तो अगर हम देखें तो ये बांग्लादेश फेमस किस तरह से हुआ, ये इसी तरह से फेमस हुआ था क्योंकि बांग्लादेश को जो है ना वो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। तो खैर मतलब कि वो इंडिया से ही उन्होंने लिया ना ये कॉटन वगैरह और इस तरह की चीज़ें, और वो भी कम रेट में, तो उनको बहुत ही जो है वो अब पूरी दुनिया में ये बांग्लादेश अपना कपड़ा जो है वो सेल करते हैं बनाकर। तो भाई इसमें यह है कि इंडिया के साथ रहेंगे तो मुझे लगता है इससे इनको फ़ायदा होगा। अगर ये इंडिया से साइड पे हो जाएंगे और चाइना का हाथ पकड़ेंगे तो चाइना तो इनको कंगाल कर देगा, जैसे पाकिस्तान की कंडीशन इन्होंने कर दी है चाइना ने। तो गाइज, आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।